Hey everyone, this is your MD Dharma from AIMSD, and yes, you heard it right that they did not let me join. Before that, if you are a new bee out here and if you're liking my contents, do subscribe to my channel. समस्याओं की जो ये सिलसिले हैं ये इस तरह आएंगे ये मुझे पता नहीं था बिकॉज एम्स डी इज़ नोन फॉर इट्स रेप्यूटेशन एंड मुझे भी लगा कि यार ये लोग तो सारा जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे दे वुड कंप्लाई बाय दैट एंड होपफुली माई प्रोसेस वुड डेफिनेटली गो ऑन द बेस्ट but what happened was ki yeah, I wanted this information to be shared with you all as well so that you don't face this problem anymore because they don't include this information into their information bulletin. So अगर तुम सबको कल को जाके एम्स डी मिलता है and if you are a PG student who has come all over from a state GMC to AIMS Delhi, I want you all to know this information as well. The thing was ki I do not want to make it here and there. I just wanted to be straight on this. That I went to the academic section, everything was going so smooth. It was my first day, the final joining day. इससे पहले मेरा reporting day था where you just are advised to submit your original documents and finally आज वो दिन था जहाँ हमें finally join करना था. And they asked me about the bond. सो आई प्रिज्यूम क्योंकि हमारे टाइम के बाद से इट वॉज मोस्टली कि ए आई क्यूज एंड द स्टेट कोटा ऑल आर एप्लीकेबल अंडर दिस बॉन्ड थिंग लाइक नो बडी एल्स इज exempted from this process. So if you're a bonded candidate from your state, you should have this bond NOC, right? And that too at the joining day itself, because ये यहाँ पे join नहीं करने देते. And this was something I asked in other AIMS as well, because जो भी मेरे जितने भी friends हैं, they were not from AIMS D, but they were from different AIMS. And I supposedly assumed कि सारे AIMS का एक ही protocol होता होगा, and I comply by that. So once I went there, I was just going to be over with the process and suddenly they give me the shock कि you have to provide your NOC, the bond NOC. And I did tell them कि मेरे clerk से मैंने बात करवाई that it is in the process. भाई बहुत कुछ हो गया है, सच बता रही हूँ, बहुत कुछ हो गया, इतना तो मैं तुम्हें बता नहीं पा रही, इतनी एग्जॉस्टेड और इतनी इरिटेटेड मैं घूम रही थी कि यार इस कॉलेज से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम एक चीज़ का इतना बतंगड़ बनाओगे. मतलब दे शुड हैव टोल्ड अस बिफोर हैंड. लाइक तुम एपेक्स इंस्टीट्यूट हो, तुम ये एग्जामिनेशन बनाते हो तो तुम्हें बच्चों को पहले बताना चाहिए कि तुम्हें बॉन्ड एनओसी की ज़रूरत है. यू शुड हैव रिटन दिस इन योर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. You did not write it, you did not tell us even at the reporting day, and now you are asking us about that. In fact ये तो अच्छा है कि we as a student were so informed and so aware कि ठीक है हमें ये bond NOC thing चाहिए होगी, and we were making that particular thing into process as far as early as possible. I mean, I already did this bond wala thing documentation earlier itself क्योंकि मुझे पता था कि this was going to happen. But at last उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग नहीं किया एंड शी टोल्ड मी कि जाओ बॉन्ड लेके आओ. आई सेड कि मैम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना बहुत मुश्किल है बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात एंड दिस इज़ दिल्ली. लाइक स्पीड पोस्ट भी करवाऊंगी तो भी 2-3 दिन हो जाएगा. एंड आई डिड नॉट वांट टू मिस ऑन टू एनी ऑफ the days because it's already been 6-7 months since we are at home because NEET PG late hua and then gave the INI thing. But she did not and finally उन्होंने मुझे ये बोला कि आज आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी and that was the most worst part that time. No worries, अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई then I thought कि ज्वाइनिंग तो मैं लेके ही रहूँगी. इतनी मेहनत करी है, मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए. एंड घूमने निकल गई क्योंकि सारे मेरे जो दोस्त थे उनकी तो ज्वाइनिंग हो गई थी और मैं अकेली बची थी. तो आई थॉट ऑफ कि चलो घूमने चलता है हियर एंड देयर. एंड चलो घुमाती हूँ मैं तुमको मैं कहाँ कहाँ घूमने गई हूँ. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. मे बी आज मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई बट आई एम हैविंग फन विद दिस डे एज ऑफ अ JR बट नॉट एन ऑफिशियल JR. सो यस, ये भी इतना मस्त था ना यार, मेरी न्यू ईयर बर्बाद करके इनकी न्यू ईयर बन रही थी. एनीवेज दिस वाज द एरिया जो सेंट्रल लॉन के बीच में था. सो ब्यूटीफुल, सो सीरीन. एंड देन मैंने सोचा कि अगर मैं सेंट्रल लॉन में रही तो मुझे बहुत बोरियत फील होगी, मुझे बार बार याद आएगा कि उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया. एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स दी एरियाज जो भी मुझे अगल बगल में दिख रहे थे.
And finally, this was so beautiful. मुझे ऐसे बस हो रहा था कि यार यहाँ आने के लिए मैं इतना मर रही थी. Now this is going to be my institute, although not official yet. But yes, someday at least. ये मेरी कुछ फालतू की हरकतें, मैं अपने ऑरा को मैच करने की कोशिश करते हुए, बट हालांकि हुई नहीं. एनीवेज, दिस वाज मी ट्राइंग टू मेक माई बैकग्राउंड एस्थेटिक. सो एज आई वॉज वॉकिंग थ्रू दीज प्लेसेस, ये एक्चुअली कॉर्नर साइड्स हैं एम्स के, जहाँ पे तुम ऐसे घूमते घूमते जाओगे. फिर इसके बाद पता है मैं घर के लिए निकलने वाली थी. आई मीन घर तो है नहीं अब मेरा यहाँ पे. डेफिनेटली आई एम इन अ पीजी एंड इस रूम का टूर भी मैं तुम्हें फटाफट से दूंगी. फ़िलहाल तो इतनी गंदी हालत में है ना यार. वैसे कभी कभी मुझे लगता है ना कि मुझे लड़की बना तो दिया गया है, पर लड़की वाली हरकतें बहुत कम है. लड़की के अंदर एक लड़का है जो बिल्कुल ही अनटाइडी एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट थोड़ा सा रूम ढंग से करके आई विल श्योरली हैव अ वीडियो ऑन दिस, हाउ डज माई पीजी लुक्स. सो येस, फाइनली मैंने अपना कॉलेज टूर वगैरह किया. मैं बहुत थक गई थी. लाइक इट्स 15,000 स्टेप्स खाली इतने में ही हो चुके थे. एंड आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माई पीजी. मेरा पीजी जस्ट बहुत पास में है. एंड मेरे फ्रेंड्स का कॉल आता है कि यार हमें छोड़ दिया. आई वाज लाइक यार इनका ज्वाइनिंग हो गया. 5 मिनट का इंट्रोडक्शन लिया और छोड़ दिया कि बेटा आज तुम चले जाओ. वैसे भी इट वॉज ऑलमोस्ट 4:30 एंड सिंस डमा बिंग द डिपार्टमेंट इट इज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड कि 5 बजे के बाद कोई काम नहीं होने वाला. सो दैट वॉज हेल एक्सपेक्टेड. बट यार ये तो पता है वो 3 इडियट्स वाली फीलिंग आ रही थी मुझे कि दोस्त फेल हो तो बुरा लगता है, बट दोस्त टॉप हो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है. दैट वॉज दैट काइंड ऑफ फीलिंग यार कि अगर हम सबका ज्वाइनिंग नहीं होता ना तो आई वुडेंट हैव बिन दिस डीप डिप्रेशन वाला फेज. बट क्योंकि मेरे बाकी रियाज की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, दैट वाज द थिंग दैट वाई आई वॉज फीलिंग लो. बट एनी हाउ मैं आई एम अ गुड ह्यूमन, सो नहीं मुझे बुरा नहीं लगता था. वॉज हैप्पी फॉर देम बट फीलिंग सैड फॉर माई सेल्फ. एनीवेज उसके बाद ऑब्वियसली मेरा ऐसा शक्ल देख के हम सब ने डिसाइड किया कि चलो मेरे डोपामीन को इंक्रीज़ करते हैं. एंड वी ऑल वेंट टू दिल्ली हाट. येस, मैंने दिल्ली में मेरे इतने सारे रिलेटिव्स रहते हैं बट आज तक दिल्ली घुमा नहीं था. सो फाइनली वेंट टू दिस प्लेस एंड लेट्स गो. तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, योर डांसर इज़ डांसिंग एंड मुझे ना नाचने का काफ़ी शौक है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई पहले ही. फिर वहाँ से हमारी ये लड़कियों वाली हरकतें शुरू हो गई. जहाँ जाओ मुँह बनाओ, नखरे करे. ये तो चलो एक चीज़ तो है मेरे अंदर जो लड़कियों जैसा है. एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर थिंग्स. दिस वाज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. इफ़ यू हैव एवर बीन देयर. यहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो तुम जो सोच रहे हो ना कि हम जैसे बच्चे खरीद लेंगे तो या तुम खरीदोगे, मुझसे तो नहीं हो पाया. एंड दीज आर माई कूल फ्रेंड्स आउट हियर जिनके साथ मैं गई थी. एंड या सो दिस वॉज हाउ इट एंडेड. एंड डोंट वरी, मेरा एडमिशन हो चुका है. एक्चुअली they are really good people as well because after all these stuffs they gave us an alternative कि ऐसा करो कि तुम डिजिटल एटलीस्ट NOC जहाँ भी बनवा रहे थे एटलीस्ट एक डिजिटल इमेज क्रिएट करवा दो फ़ोटोज़ की तरह. मतलब क्योंकि हार्ड कॉपी आने में टाइम लग जाता है. एंड दे अलाउड अस कि ब्रिंग द एटलीस्ट हैव द फोटो सो दैट उनको भी उनके साइड से भी उनको एक थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल जाए. एंड वी डिड दैट एंड नाउ आई एम joined finally the college. And yes, take care, goodbye, and see you in the next video with some things around the corner.